हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है चैप्टर 12 जो है ज्योग्राफी का है, जिसमें आज हम करेंगे ह्यूमिडिटी एंड द प्रेसिपिटेशन, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। आर्द्रता और वर्षण भूगोल का चैप्टर 12। ये चैप्टर जो है कई मायने में हर एक क्लास के लिए बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे हो, चाहे बिहार बोर्ड के बच्चे हो, चाहे एनआईएस बोर्ड के बच्चे हो, चाहे कहते हैं सीबीएसई के हो। अगर इनके सिलेबस में ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन है तो ये चैप्टर काफ़ी मायने में इंपॉर्टेंट रहेगा। प्लस जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। द नेक्स्ट पॉइंट हेयर evaporation. That is the most important here. Evaporation. The evaporation is the process of which water change from its liquid state to gaseous form. You know that? What is evaporation? Evaporation is a process which the water change from its liquid state to gaseous form. And this process takes place at the all place, at all time and all temperature, except at the dew point or when their air is saturated. The rate of evaporation is affected by several factors. The important among them are as under some point here. The first point, accessibility of water bodies. The accessibility of water bodies here, the rate of evaporation is high over to ocean than on the continent. That is according to the accessibility of water body. And next here, temperature. The temperature is also important here. We know that hot air hold more moisture than the cold air. The hot air hold more moisture than cold air. So when the temperature of an air is high, it is capable of holding more moisture in its body. Then at a low temperature, it is because of this that is the rate of the evaporation is more in the summer than the winter. The important point here, the moisture more hold on the is a hot air, not a cold air. That is the moisture is the most important, and evaporation is more in the summer than to winter. And that is why wet is cloth dry faster in a summer than winter. That is the most important question here. Answer here, what is why wet is cloth dry faster in summer than to the winter? The next point here, air moisture. The air moisture is here. If the relative humidity of a sample of air is high, it is capable of holding less moisture. On the other hand, if the relative humidity is less, it can be take more moisture. Hence, the rate of evaporation will be high. The humidity or dryness of the air also increase the rate of evaporation. During a rainy day, wet clothes take more time to dry owing to be high percentage of moisture contained in the air than on dry days. That is important here. I repeat again, the rate of evaporation will be high. Humidity or dryness of the air also increase the rate of evaporation. During the rainy
day, wet clothes take a more time to dry owing to be the high percentage of moisture content in the air than a dry day. That's important. And next here, the winds. The wind is the most important here. Wind also affect the rate of evaporation. If there is a no winds, the air which overlies or water surface will be get saturated through the evaporation, and this evaporation will be says once saturation point is reached. The however, if there is a wind, it will be a below that is a saturated or the nearly saturated air away from to the evaporating surface, and the replace it is with the air of the lower humidity, and this allow to the evaporation to continue as the long as the winds is a keep blowing saturated air away and wearing dry air. There is the most important air here. And the next here is the cloud. The cloud is over. The cloud over is the most important here. The cloud over prevent solar radiation and thus the influence the air temperature at a place. And this way it is directly control the process of evaporation. It is interesting to be note that about a 600 calorie of heat used for the converting to each gram of water into the water vapor. A calories is a unit of heat energy spent to the rising a temperature of 1 gram of water by 10 Celsius. The heat energy used for changing their state of water or body from a liquid to gaseous state, or from solid ice to the liquid water, and the state without a changing its temperature is called latent heat. You know that there is the most important airline. The heat energy used for changing the state of water or a body from liquid to gaseous state, from to the solid ice to the liquid water. A state without a changing its temperature is called latent heat. It is a sort of hidden heat. The hidden heat is the most important here. It is also called to the latent heat or hidden heat. The effect of which is not to be seen on there is a thermometer. The latent heat is a consumed, it is a changing water into the gases from is a release when to the water vapor change into the water or ice. The release of latent heat is the air is on the important source of energy from causing a change in a weather. There is an important here. The release of latent heat is the air is an important source of energy from a causing of change in a weather. A special case of evaporation is a transpirations, and which entails is a loss of water from a leaf and stem tissue of growing vegetation. The combined loss of moisture by the evaporation and transpiration from a given area or term is called evapotranspiration. Evapotranspiration. That is the most important here. And the next here, at some point, according to this here point, the first point here, the evaporation is the process of changing water into the vapor. You know that the evaporation is a process of changing water into water vapor. The second here, important. The rate of evaporation is affected by the availability of water, temperature, and rarity of air, wind, and cloud over. That is important here. And also is the third point is the most important. The heat energy used to change the state of water or body from liquid to the gaseous state, from its solid to liquid state without changing in a temperature is called latent heat. I repeat again. The heat energy used for changing the state of water or body from liquid to the gaseous state or from liquid to liquid state without changing its temperature is called latent heat. हमारा जो पॉइंट आया है बाष्पीकरण, देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर पॉइंट आया है, ये काफ़ी महत्व रखता है हर क्लास के बच्चों के लिए। बाष्पीकरण,
तो बाष्पीकरण होती क्या है? अगर देखा जाए तो वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल गैस अवस्था में परिवर्तित होता है, उसे हम बाष्पीकरण कहते हैं। यानी देखा जाए तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल जो होती है गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। जल जो होती है गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, उसे ही हम बाष्पीकरण कहलाती है। बाष्पीकरण की प्रक्रिया उष्णांक अवस्था को छोड़कर प्रत्येक तापन स्थान या समय में होती है। यानी देखा जाए तो बाष्पीकरण की प्रक्रिया उष्णांक अवस्था को छोड़कर यानी ठंड अवस्था को छोड़कर तापमान समय के साथ होती रहती है। तो बाष्पीकरण तो आपको पता ही, जितना धूप पड़ेगा उतना ही अधिक बाष्पीकरण होगा, ये स्वाभाविक बात है। बाष्पीकरण की दर कई कारकों पर निर्भर करते हैं, जिस पे हम चर्चा करने जा रहे हैं कि बाष्पीकरण की दर जो है कारकों पर निर्भर करते हैं, कई कारक होते हैं। इसमें से प्रमुख कारक यहाँ पर दिखाया गया है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण वाली बात रखेगी। अब देखिए पहला पॉइंट यही आता है, जल की उपलब्धता। बाष्पीकरण तभी होगा जब जल की उपलब्धता होगी, तो यही पहला पॉइंट दर्शाता है, जल की उपलब्धता। असल भागों की अपेक्षा जल भागों से बाष्पीकरण अधिक होती है, और यही कारण है कि बाष्पीकरण महाद्वीपों की तुलना में महासागरों पर अधिक होती है। तो जनरल सी बात है, महासागरों में जल की मात्रा अधिक होगी, तो वहाँ पर जो है बाष्पीकरण अधिक ही होगी, ठीक है। और महाद्वीपों में कम होगी, क्योंकि महाद्वीप में जल की आवश्यकता कम होती है, कम अमाउंट में जल होती है। तो यह आप बात समझ गए होंगे कि जल की उपलब्धता, जहाँ जल अधिक होगी वहाँ पर जो है बाष्पीकरण की जो है अधिक होगी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, सही है। देखते हैं अगला क्या है। दूसरा पॉइंट आता है तापमान। देखिए बाष्पीकरण की प्रक्रिया अगर निर्भर करती है तो जल के बाद जो है तापमान पे ही करती है। देखिए तापमान, वो हम जानते हैं कि गर्म वायु ठंडी वायु की तुलना में अधिक नमी धारण करती है। यानी देखा जाए तो गर्म वायु जो होती है, ठीक है, ठंडे वायु की तुलना में अधिक जो है यहाँ पर जो है नमी धारण करती है। यानी देखा जाए तो अगर साधारण शब्द में समझो तो ये बात होती है, जब गर्म हवाएं चलती है तो बाष्पीकरण की जो प्रक्रिया होती है तेज हो जाती है। लेकिन ठंडी वायु में ऐसा नहीं होता है। ठंडी वायु में जैसे सर्द का टाइम होता है, सर्दी के टाइम वहाँ पर जलवाष्प नहीं बनते हैं, और गर्मियों में जलवाष्प बहुत अधिक बनते हैं। अंततः जब किसी वायु का तापमान अधिक होता है, वह अपने अंदर का कम तापमान की तुलना में अधिक नमी धारण करने की स्थिति में होती है। यानी देखा जाए तो जितना हवा जो होगा वायु गर्म होगा, तापमान में होगा, उतना अधिक नमी को जो है धारण करेगा। और यही कारण है कि शीतकाल की तुलना में ग्रीष्म काल में बाष्पीकरण अधिक होती है। जैसे कि मैंने पहले बात बता दी थी कि शीतकाल की तुलना में ग्रीष्म काल में बाष्पीकरण अधिक होती है, क्योंकि हवा में गर्मी होती है। अंततः गीले कपड़े सर्दियों की तुलना में गर्मी में जल्दी सूख जाते हैं। तो यही बात आती है कपड़े सूखने में भी। तो ये 9th क्लास के बच्चों के लिए भी बहुत महत्व रखता है। इनका क्वेश्चन भी होता है, गीले कपड़े जो है सर्दी की तुलना में गर्मी में जल्दी क्यों सूख जाते हैं। यही कारण है, गीले कपड़े सर्दियों की तुलना में गर्मी में जल्द सूख जाते हैं, क्योंकि बाष्पीकरण अधिक होता है गर्मियों में। इसलिए कपड़ा अगर आप रखते हो बाहर, चाहे धूप उस पर पड़े चाहे हवा ना पड़े, गर्मी के ह्यूमिडिटी के कारण जो है जल्दी ही कपड़ा जो है जलवाष्प में कन्वर्ट हो जाएगा और पानी जो होगा उसमें से सूख जाएगा। तापमान के बाद तीसरी पॉइंट यही बात को दर्शाता है कि वायु की नमी। देखिए वायु की नमी बहुत बात रखता है यहाँ। यदि किसी वायु की अपेक्षा आर्द्रता अधिक है तो वो कम मात्रा में अतिरिक्त नमी धारण कर सकती है। यानी देखा जाए तो मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि किसी वायु की अपेक्षा सांद्रता अधिक है तो वह कम मात्रा में अतिरिक्त नमी धारण कर सकती है। इसके विपरीत यदि सापेक्ष आर्द्रता कम है तो अधिक मात्रा में जो है अतिरिक्त नमी धारण कर सकती है। ऐसी स्थिति में बाष्पीकरण अधिक तेज़ी से होगा। तो बाष्पीकरण तो होगा ऐसी कंडीशन में अधिक तेज़ी से होगा, तो स्वाभाविक बात है। वायु की जो है शुष्कता भी बाष्पीकरण की दर को तेज करती है। यानी वायु की जो शुष्कता भी जो है बाष्पीकरण की दर को तेज करती है। वर्षा वाले दिनों में वायु में अधिक नमी होने के कारण गीले कपड़े देर से सूखते हैं। तो ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण वाली बात आती है कि वर्षा वाले दिनों में वायु में अधिक नमी होने के कारण गीले कपड़े बहुत देर से सूखते हैं, क्योंकि वायु में जो है ऑलरेडी नमी है, तो कपड़े की नमी कैसे सूख पाएगी। तो इसलिए जो है बरसात के समय में कपड़े बहुत जो है लेट से सूखता है। तो यहाँ पर कई प्रश्न के उत्तर जो है आपको मिल रहा है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए टॉपिक था। ठीक है, अगला हमारा जो पॉइंट है,
पवन यानी विंड्स। देखिए कहते हैं पवन भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देता है वैश्वीकरण के अंतर्गत। हवा भी वाष्पीकरण की दर को काफ़ी प्रभावित करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सच है कि हवा की वाष्पीकरण की दर को काफ़ी प्रभावित करती है। यदि वायु शांत है तो जलीय धारण से लगी वायु वाष्पीकरण होते ही संतृप्त हो जाती है। यानी वायु अगर शांत है तो जलीय धरातल से लगी वायु वाष्पीकरण होने की जो है संतृप्त हो जाएगी, और वायु के संतृप्त होने पर वाष्पीकरण रुक जाएगी। वायु के संतृप्त होने पर वाष्पीकरण जो है रुक जाएगा। यदि वायु गतिशील है तो वह संतृप्त वायु को उस स्थान से हटा देती है। ठीक है, यदि वायु गतिशील है तो वह संतृप्त वायु को उस स्थान से हटा देती है, उसके स्थान पर कम अंदरता वाली वायु आ जाती है। यानी उसके स्थान पर कम अंदरता वाली वायु आ जाती है और इससे वाष्पीकरण की प्रक्रिया फिर आरंभ हो जाती है। यानी इससे क्या होगा, वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो है फिर से आरंभ हो जाती है और तब तक होती रहती है जब तक संतृप्त वायु पवन द्वारा हटाई जाती रहती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आ जाता है कि इससे वाष्पीकरण की प्रक्रिया फिर आरंभ हो जाती है और तब तक होती रहती है जब तक संतृप्त वायु पवन द्वारा हटाई जाती रहती है। पवन के उपरांत जो हमारा अगला पॉइंट आता है वह है बादलों का आवरण। देखिए बादलों का आवरण भी वाष्पीकरण की दर को काफ़ी प्रभावित करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, बादलों की आवरण तो कहते हैं मेघाच्छन्न और सौर विकिरण में अवरोध डालता है और किसी स्थान की वायु के तापमान को प्रभावित करता है। इस प्रकार यह अप्रत्यक्ष रूप से वाष्पीकरण की प्रक्रिया को नियंत्रित भी करती है। तो आप समझ गए होंगे कि बादलों का आवरण किस प्रकार यहाँ हेल्प करती है। जैसे मेघाच्छन्न और विकिरणों में जो है सौर विकिरणों में अवरोध डालती है और किसी स्थान की वायु के तापमान को काफ़ी प्रभावित करती है और इस प्रकार यह अप्रत्यक्ष रूप से वाष्पीकरण की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है, जो कि काफ़ी महत्व वाली बात यहाँ रखती है। यह रोचक तथ्य है कि 1 ग्राम जल को जलवाष्प में बदलने के लिए लगभग 600 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अब देखिए इसका जो है तुलना कैलोरी के साथ की जाती है कि 1 ग्राम अगर आप जल को जलवाष्प में बदलना है तो उसके लिए जो है 600 कैलोरी ऊर्जा बर्न करेगी। तो यहाँ पर जो है जलवाष्प बदलने के लिए जल के जो है जलवाष्प में बदलने के लिए कैलोरी जो लगेगी 600 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, यानी हीट की आवश्यकता होगी। और 1 ग्राम जल के तापमान को 10 सेल्सियस से बढ़ाने में जो ऊर्जा जो है हमें ऊष्मा ऊर्जा खर्च होती है उसे ही कैलोरी कहते हैं। तो कैलोरी तो आप समझ गए होंगे कि जितना ऊर्जा लगेगी किसी को जलवाष्प में बदलने में, जितना हीट उत्पन्न होगी उसी को एक कैलोरी के नाम देते हैं। जैसे अगर साधारण रूप में देखा जाए तो जो शहरी के लोग होते हैं वो 2100 कैलोरी जो है बर्न करते हैं एक दिन में, और जो ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं 2400 कैलोरी बर्न करते हैं। तो इस बात को भी आप यहाँ से समझ सकते हो कि जितना हमारा शरीर में जो है एनर्जी बर्न होती है वही कैलोरी कहलाती है। तो 1 ग्राम जल के तापमान को देखिए 1 ग्राम जल को तापमान को 10 सेल्सियस से बढ़ाने से जो ऊष्मा ऊर्जा खर्च होती है उसे ही कैलोरी कहते हैं। तापमान में बिना परिवर्तन किए जब जल द्रव्य अवस्था से गैसीय अवस्था में बदल जाता है या जब ठोस बर्फ अवस्था से द्रव्य अवस्था में बदल जाता है तो इस प्रक्रिया में जो ऊष्मा खर्च होती है उसे हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आ जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है कि तापमान में बिना परिवर्तन किए जब जल द्रव्य अवस्था से गैसीय अवस्था में बदल जाता है, यानी द्रव्य अवस्था से किस में बदलता है, गैसीय अवस्था में बदलता है, या जब वह ठोस बर्फ अवस्था में द्रव्य अवस्था में बदल जाता है, तो इस प्रक्रिया में जो ऊष्मा खर्च होती है उसे ही हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। और गुप्त ऊष्मा को हम दूसरे प्रकार से देखें तो छुपी हुई ऊष्मा भी कहते हैं, यानी हिडन हीट, यानी लेटेंट हीट को हम जो है छुपी हुई ऊष्मा भी कह सकते हैं, यानी गुप्त ऊष्मा को छिपी हुई ऊष्मा भी कह सकते हैं। इसका प्रभाव तापमापी पर दिखाई नहीं देता है, यानी इस बात को देखिए जो थर्मामीटर होते हैं तापमापी उस पर इस पर कोई असर देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जब जलवाष्प जल की नन्ही नन्ही बूंदें या बर्फ़ के कणों में बदलती है
तो ये गुप्त ऊष्मा वायु में छोड़ दी जाती है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे कि जब जलवाष्प जल की नन्ही नन्ही बूंदें या बर्फ के कणों में बदल जाती है तो ये गुप्त ऊष्मा वायु में छोड़ दी जाती है। वायुमंडल में छोड़े जाने वाली यह गुप्त ऊष्मा मौसम परिवर्तन के लिए ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत बनती है। तो अब देखिए कितना महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आ जाता है कि वायुमंडल में छोड़े जाने वाली यह गुप्त ऊष्मा मौसम परिवर्तन के लिए ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत बनती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ रखती भी है। वाष्पोत्सर्जन एक विशिष्ट प्रक्रिया है जिसमें वनस्पतियों की पत्ती एवं उसके तने द्वारा जलवाष्प के रूप में परिवर्तित होता है। तो आप समझ गए कि वाष्पोत्सर्जन एक विशिष्ट प्रक्रिया है जिसमें वनस्पतियों के पत्तियों एवं उनके तनों द्वारा जलवाष्प के रूप में परिवर्तित होती है। किसी क्षेत्र में वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन द्वारा संयुक्त रूप से हुए जल के हर्ष को वनस्पतिक वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। आप देखिए, वनस्पतिक वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? किसी क्षेत्र से वाष्पीकरण तथा वाष्पोत्सर्जन द्वारा संयुक्त रूप से हुए जल के हर्ष को यानी जल के नुकसान को वनस्पतिक वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखता है। और यहाँ पर एक बॉक्स है, उसमें भी सारे शब्दों का निचोड़ है जिसको आपको अपने कॉपी पे नोट डाउन करना चाहिए और इसी को याद करके अपना जो एग्ज़ाम को लिए अच्छी तैयारी करना चाहिए। अब देखिए इस बॉक्स में किस बातों के ऊपर उजागर किया गया है। तो पहला पॉइंट यही दर्शाता है कि जल से जलवाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। देखिए कितना आसान शब्द है कि जल से जलवाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। और वाष्पीकरण की दर जल की उपलब्धता, तापमान, वायु की शुष्कता, पवन तथा मेघातन द्वारा नियंत्रित होती है। देखिए अब वाष्पीकरण की दर जो होती है जल की उपलब्धता, तापमान, वायु की शुष्कता, पवन तथा मेघाच्छन्न द्वारा नियंत्रित होती है, जिसके विषय में हमने विस्तार पूर्वक चर्चा भी किया था। ठीक है, अगर आखिरी पॉइंट की हम बात करें तो ये साफ करता है कि तापमान में बिना परिवर्तन किए जब जल द्रव्य अवस्था में गैसीय अवस्था में बदल जाता है, यानी तापमान में बिना परिवर्तन किए जब जल जो है द्रव्य अवस्था से गैसीय अवस्था में बदल जाता है या जब वह ठोस यानी बर्फ अवस्था में द्रव्य अवस्था में बदलता है तो इस प्रक्रिया में जो ऊष्मा खर्च होती है उसे हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। देखिए कोई भी प्रक्रिया आप करोगे तो उसमें ऊष्मा लगेगी ही लगेगी और कैलोरी जो है बर्न होगी ही होगी। तो जितना भी क्रिया कीजिएगा उतना ही आपको भोजन ग्रहण करने की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हमने जो है बात पे चर्चा किया और बहुत ही विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश किया। मुझे नहीं लगता कि आपको बात समझ में नहीं आई होगी, सारी बातें आपको क्लियर हो गई होगी और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी भी है। तो जो बातें नोट करने वाली थी उसके अपने कॉपी पर ज़रूर नोट कीजिए और एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त कीजिए। ठीक है, अगर ये आपको समझ में अच्छे से आ गया है तो एक बात और भी करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और जितना हो सके अगर कुछ इसमें गलतियाँ थी, कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। कमेंट करने से ये होता है कि गलतियों को सुधारा जाता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा प्रयत्न किया जाता है। तो इसमें मैं कोई माइंड नहीं करूँगा, आप जितना चाहे गलत भी बोल सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो, जिससे मैं बेटर से बेटर कोशिश कर सकता हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि गलती जब तक मुझे पता नहीं लगेगी मैं आपके लिए अच्छा नहीं कर सकता। ठीक है, और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, तभी जो है आपको समय समय पर त्रिपाण स्टडी सेंटर का वीडियो प्राप्त होगा। अगर आप सोच रहे होगे कि मेरा यहाँ तो पढ़ाई खत्म हो जाएगी उसके बाद त्रिपाण स्टडी सेंटर का क्या आवश्यकता है, तो आपको शायद पता हो कि त्रिपाण सेंटर जो है 8th क्लास से लेके MA तक बच्चों के लिए बहुत ही वीडियो बना चुका है और बहुत वीडियो बनने वाली है। तो ये आपके लिए फ़ायदे में रहेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए। नहीं, अगर सेव नहीं कीजिएगा तो आपको फिर जो है त्रिपाण सेंटर की आवाज़ सुनाई नहीं देगी।